Okay, so water use efficiency is total water used to the crop to total water delivered in the field. That ratio gives the water use efficiency. Okay. Voice is audible now? Ma'am. Yes, ma'am. Voice is audible to all? So see the screen. Yes, ma'am. So next question is कौन सा question number था? That is 12. That question is from ES 93. Okay. So next question is the water utilizable by plant is available in soil mainly in form of gravity water, capillary water, hygroscopic or chemical water. Ma'am, B, capillary water. Capillary water. Yes, ma'am. Is it correct? Water utilizable by plant is available in soil mainly in form of capillary water. हाइग्रोस्कोपिक वाटर को वाटर का प्लांट रूट ऑब्जर्व नहीं कर सकता है, ठीक है. केमिकल वाटर दैट इज ऑल्सो नॉट ऑब्जर्वेबल, बट कैपिलरी वाटर हमने कहा ये बताया था सॉइल वाटर जोन. व्हेन वी डिस्कस सॉइल वाटर जोन देन discuss the soil water zone is divided in 3 zones, that is also capillary zone is middle one, ठीक है. Saturated zone and capillary zone. So capillary zone water is used by plant. See the next question, that is 14. The question is the amount of irrigation water required to meet the evapotranspiration need of the crop during its full growth is called effective rainfall, consumptive use, consumptive irrigation requirement or net irrigation requirement. Which one is correct? Evapotranspiration is also known as which term? Which one is correct? B, conjunctive use. B, ma'am. Consumptive use. Yes, ma'am. Is it correct? So here two option is similar, consumptive use and consumptive irrigation requirement. So ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं. Both are same. Consumptive use and consumptive irrigation requirement both are same. Both are called evapotranspiration need. जो भी अमाउंट हमारा evapotranspiration में जो वाटर अमाउंट यूज होता है that is called consumptive use and consumptive irrigation requirement also same thing. ठीक है. For question number 15 is with the increase in the quantity of water supplied, the yield of most crop increases continuously, decreases continuously, increase up to a certain limit, then become constant, increases up to a certain limit, then become decreases. Which one is correct? Increases in quantity of water supplied, then yield of crop. D. What is Option D. Option D. Is it correct? Option D? Yes, ma'am. Okay. So option D is correct. Yield मतलब maximum obtained, maximum crop obtained. That is the जो इरिगेशन के बाद जो क्रॉप हमें मिलता है, that amount is the
Yes, that amount is the yield capacity. So अगर हम पानी का क्वांटिटी लगातार इंक्रीज करते जाएं, देन क्या होगा? क्रॉप हमारा यील्ड है जो इंक्रीज करेगा, मतलब जो उपज है, जो हमारा आउटपुट मिल रहा है, दैट इज इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली, डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली, इंक्रीजेस अप टू अ सर्टेन लिमिट, देन बिकम कांस्टेंट, और इंक्रीजेस अप टू अ सर्टेन लिमिट, देन डिक्रीजेस. सो अगर हम लोग जरूरत से ज्यादा पानी प्रोवाइड करते हैं, देन क्या होगा? हमारा यील्ड है जो यील्ड कैपेसिटी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. बट एट ए सर्टेन लिमिट, मतलब इनिशियल फेज में पानी की जरूरत ज्यादा होती है क्रॉप को, उस समय यील्ड है जो इंक्रीज करेगा, बट एट ए सर्टेन लिमिट इट डिक्रीजेस. सो डी ऑप्शन इज करेक्ट. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड फ्रॉम हाइड्रोग्राफ, दैट इज द हाइड्रोलॉजी. So question is, hydrograph is the graphical representation of, very simple question, runoff and time, surface runoff and time, groundwater flow and time, rainfall and time. Which one is correct? Option D. Option D, rainfall and time. Rainfall and time. Think again. Hydrograph is the graphical representation of. क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्चार्ज और टाइम के बीच में. कौन सा डिस्चार्ज? डिस्चार्ज मतलब व्हाट? रेनफॉल या रन ऑफ? रन ऑफ. रन ऑफ या फिर वाटर, ग्राउंड वाटर फ्लो? Q मैम and T सरफेस के रन ऑफ. बीच में बनता है, मैम. सरफेस रन ऑफ. कौन सा करेक्ट होगा? रन ऑफ और सरफेस रन ऑफ? बी नंबर में. बी. A, ma'am. Hydrograph represent runoff versus time. We can't say for hydrograph is the surface runoff. ठीक है. सरफेस, ये हाइड्रोग्राफ को भी स्पेसिफाइड नहीं किया ये कौन सा हाइड्रोग्राफ है, फ्लड हाइड्रोग्राफ है या फिर यूनिट हाइड्रोग्राफ है. ठीक है. अगर फ्लड हाइड्रोग्राफ है देन वी कैन से रन ऑफ टाइम. अगर यूनिट हाइड्रोग्राफ है देन वी कैन से सरफेस रन ऑफ एंड टाइम, क्योंकि जो यूनिट हाइड्रोग्राफ होता है दैट गिव्स द इफेक्टिव रन ऑफ वर्सेस टाइम ग्राफ. सो यहाँ पे ओनली हाइड्रोग्राफ है, सो मोस्ट सुटेबल आंसर इज द रन ऑफ वर्सेस टाइम ग्राफ. ठीक है. समझ में आया? Yes, ma'am. Question number 17. So see the question 17 also from hydrology. So question is, infiltration rate is always more than infiltration capacity, less than infiltration capacity, equal or less than infiltration capacity, equal or more than infiltration capacity. Which one is correct? Infiltration rate. Ma'am, option C. Option C. And reason? क्या रीजन है? कैसे? मैम मैम, कैपेसिटी से कम ही होगा रेट और या तो बराबर. इनफिल्ट्रेशन या तो उसके बराबर होगा या फिर सॉइल में कम ही होगा. नहीं, अगर ज्यादा होगा तो वो तो सॉइल soil बह इनफिल्ट्रेट जाएगा. नहीं कर पाएगा, मैम. Okay, correct. So option C is correct. Infiltration rate is always equal to or less than infiltration capacity. Okay, जितना कैपेसिटी हो उतना ही तो रेट होगा ना. कैपेसिटी से ज्यादा तो इनफिल्ट्रेशन रेट नहीं हो सकता है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18. Question is, the depth of water required to bring the soil moisture content of a given soil up to its field capacity is called.
हाइग्रोस्कोपिक, इक्विवेलेंट मॉइस्चर, सॉइल मॉइस्चर और पेलिक्यूलर वाटर। The depth of water required to bring the soil moisture content of a given soil up to its field capacity. क्या होता है? Which one is correct? Ma'am, C option, soil moisture deficiency. No idea. Option C, soil moisture deficiency. Okay, C option is correct, but how this is? What is the reason? Field capacity is called soil moisture deficiency. अगर कोई डाउट है तो क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट करके रख लो और जो थ्योरी पोर्शन है उसको एक बार फिर से रिपीट करना। सारा पॉइंट है जो ऑलरेडी डिस्कस किया गया है क्लास में। मैम क्वेश्चन एलएमएस पोर्टल पे ये वाला अपलोड कीजिएगा क्या? क्या बोलो? एलएमएस पोर्टल पे अपलोड कीजिएगा क्या ना? हाँ ठीक है, मैं एलएमएस पे अपलोड कर दूंगी। पेलिक्यूलर वाटर क्या होता है? मैम इसके बारे में आइडिया नहीं है। मुझे जहां तक याद है मैंने ये भी बताया है क्लास में। क्या होता है पेलिक्यूलर वाटर? ओके, जस्ट नोट डाउन द पॉइंट पेलिक्यूलर वाटर ताकि तुम लोग दोबारा देख सको। ठीक है, सब कुछ तो बताया जा चुका है, खुद से तो याद रहता नहीं है, तो एक बार खुद से ही कोशिश कर लो। जो जो पॉइंट मिसिंग है एक कॉपी पे नोट्स बुक पे अपना नोट डाउन कर लो कि हमें चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 19 is very easy. Infiltration capacity is a factor change with time, change with location, change with both time and location. Which one is correct? Infiltration capacity. Change with both. Change with both time and location. टाइम के साथ क्या होगा? डिक्रीज करते जाता है। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू लोकेशन चेंज होता है, मतलब किस टाइप का सॉइल है इस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 is also from infiltration. So infiltration is the movement of water through the soil, absorption of water by soil surface A and B and none of the above. Which one is correct? मैम ऑप्शन 20. सी। See both. Option C. यस मैम। Movement of water through the soil, absorption of water by soil surface. Soil ऑब्जर्व करता है क्या इन्फिल्ट्रेशन में? ओनली मूवमेंट थ्रू द सॉइल। ऑब्जर्वेशन का क्या है? इन्फिल्ट्रेशन में ऑब्जर्वेशन हम लोग नहीं बोल सकते, दैट इज मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 21, द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इज मोर देन द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी
then the infiltration rate will be, again same question, क्या होगा, कौन सा आंसर होगा? Infiltration rate Ma'am, equal to infiltration capacity. equal to infiltration capacity. If intensity of rainfall is more than infiltration capacity, then infiltration rate will be equal to infiltration capacity. बारिश कितना भी तेज हो उससे क्या होगा, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी जितना है रेट उतना ही होगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम. Question number 22. Cyclonic precipitation is caused by lifting of an air mass due to pressure difference, temperature difference, natural or topographical barrier, or all of the above. Cyclonic precipitation due to pressure difference. Correct? Question number 23. Which one of the following is a non-recording rain gauge? Tipping bucket, Simon rain gauge, Steven gauge, floating type. Which one is non-recording? Ma'am, Simon option rain E, gauge. Simon rain gauge. Simon rain gauge. That is also used in India. Question number 24. A rain gauge should preferably be fixed near the building, under the tree, in open space, in closed space. Which one is correct? In an open space. Option C, in open place. Okay. Question number 25. If the allowable percentage error in the estimate of basic rainfall is E and coefficient of variation of rainfall is CV, then the optimum number of rain gauge is given by, that is based on formula for the rain gauge estimation. So which one is correct? CV is the coefficient and E is the error. मैम ऑप्शन ए या ऑप्शन सी होगा, दोनों में से एक कोई होगा. कौन सा होगा, कुछ याद आ रहा है? ऑप्शन E का स्क्वायर, सी अगेन एक बार C. चेक करना में, दैट इज डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर द एरर कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, सी बाई ई का स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 26. Which one of the following types of rain gauge is used for measuring rain in remote hilly inaccessible areas? Inaccessible areas में कौन सा मेथड यूज करते हैं, टिपिंग बकेट, वेइंग बकेट, फ्लोटिंग बकेट टाइप और साइमन रेन गेज? For hilly inaccessible. मैम ट्रिपिंग बकेट टाइप. मैम टिपिंग बकेट टाइप क्यों? नहीं मैम, फ्लोटिंग टाइप. मैम फ्लोटिंग टाइप. फ्लोटिंग टाइप में ना मैम हम लोग को ना ग्राफ मिलता है मैम, तो वो हिली एरिया में बार बार हम लोग सर्वे करने के लिए नहीं पहुंच पाते मैम. ओके, सो एक बार इसे चेक करना कि कौन सा हमारा हिली एरिया में बेस्ट ऑप्शन है. आइदर टिपिंग बकेट, आइदर फ्लोटिंग, विच वन इज बेस्ट? मैम इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर टिपिंग बकेट दिया है, लेकिन मे बी इट्स नॉट करेक्ट. बुक्स में गलत आंसर भी रहते हैं. जस्ट चेक अगेन. बुक में देखना कोई स्टेटमेंट लिखा होगा फॉर हिली एरिया. ओके मैम. Which type of non-recording age is used?
Mostly tipping bucket may be correct, but इसका रीजन देखना क्या है. हम जहाँ तक हमको याद आ रहा है ना, ये तीनों में ग्राफ बनता है मैम. तीनों में ग्राफ नहीं बनता है. टिपिंग बकेट में ग्राफ नहीं बनता है, उसमें तो मेजरिंग क्लास रहता है नीचे में, तो उससे मेजर कर लो। टिपिंग बकेट में ग्राफ नहीं बनता है, फ्लोटिंग में ही ग्राफ बनता है. एंड वेइंग में जो स्ट्रिंग फ्लोटिंग लगा और रहता है वेट जिसके थ्रू में भी वाटर है जो बनता है, वेट मेजरमेंट. में कम्युनिकेटिव ग्राफ बनता है. But which one is the mostly used in hilly inaccessible remote area? The term is used remote hilly inaccessible area. So इसमें कौन सा हमारा टाइप यूज होगा एंड क्यों? ओके, तो इसको डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27. So rate of evaporation from a water surface increases if difference of vapor pressure between water and air, velocity of wind. क्या होगा? Which one is correct? Evaporation rate. मैम 1 and 2 मतलब ऑप्शन मैम A. बी नंबर होगा 1 and 3। 1 and 3. So question is rate of evaporation from a water surface increases. कब increase होगा evaporation rate? Difference of vapor pressure between water and air is increases. Is it correct? Velocity of wind decreases. So second option तो गलत है. Increase करेगा तो हमारा evaporation rate ये होगा. Concentration of soluble solid in water is decreases. So that depends on rate or not. Evaporation rate increases or not. अगर soluble solid को decrease करते हैं तो इवेपोरेशन जल्दी होगा। जल्दी होगा जल्दी मैम. होगा. So Yes. option 1 and 3 is correct. Second option हमारा गलत स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन B is correct. Next is 28. 70% index of wetness means क्या होता है? Wetness, index of wetness क्या रिप्रेजेंट करता है? ये हमारा रेन डिफिशियंसी, मॉइस्चर डिफिशियंसी को मेजर करता है. तो अगर हमारा इंडेक्स ऑफ वेटनेस WI अगर 70% है, दैट मीन्स रेनफॉल, मॉइस्चर हमारा 70% है, बट डिफिशियंसी इज 30%. सो रेन डिफिशियंसी इज 30%. ऑप्शन बी इज करेक्ट. ओके. क्वेश्चन नंबर 29. Under the same condition, which of the following shape of the water surface will give the highest rate of evaporation? Convex water, concave, independent of shape, flat water surface. क्या होगा आंसर? कॉन्वेक्स। Convex. Correct. Next question is assertion reason. So assertion is, first statement is, to estimate the rainfall over a catchment, the number of rain gauge required per unit area is large for hilly area. Is this statement is correct or not? Large hilly area के लिए हमें number of rain gauge per unit area के अकॉर्डिंग ज्यादा चाहिए. यस मैम, ज्यादा चाहिए। ज्यादा चाहिए. Correct. Reason is rainfall gradient is steep. Is this statement is correct? Reason is correct or not? यस मैम, ग्रेडियंट स्टीप होता है। Yes ma'am, reason is Rainfall gradient is steep.
That means both the statement is correct and region is also correct. Yes, ma'am. Okay, matlab explanation is also correct. So option A is correct. Next is the when surface of transpiration is submerged under water, then potential evapotranspiration PET is much more evapotranspiration, much less than evapotranspiration, equal to evapotranspiration, equal to or less than evapotranspiration ratio. When surface of transpiration is submerged, submerged ही लिखा है ना, submerged under water. When surface of transpiration is submerged under water, then potential evapotranspiration is PET क्या होगा? Which option is correct? Equal to evapotranspiration. Equal. PET क्या होता है? पोटेंशियल इवेपोट्रांसपायरेशन. ऐसा सोचो ना कि अगर कोई मेरा सॉइल रूट जोन है, कोई प्लांट का रूट जोन है ना, उसका एक अपना इवेपोट्रांसपायरेशन है, वैल्यू है, दैट इज नोन एज actual, not actual, that is the evapotranspiration, that is only evapotranspiration value. अगर उस रूट जोन को बिल्कुल सबमर्ज कर दिया जाए, then what is the value of PET, that is the potential evapotranspiration, and what is the value of ET, evapotranspiration? क्या हो जाएगा? PET क्या होता है? पोटेंशियल इवेपोट्रांसपायरेशन क्या होता है? पोटेंशियल इवेपोट्रांसपायरेशन क्या होता है? PET मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना इवेपोट्रांसपायरेशन, मतलब कितना वाटर का यूज करेगा, दैट इज पोटेंशियल इवेपोट्रांसपायरेशन. मैक्सिमम टू मैक्सिमम मतलब जितना पानी अवेलेबल है, अगर मैक्सिमम वाटर अवेलेबल है, देन पीटी का वैल्यू क्या होगा? ज्यादा होगा. एंड व्हाट इज एक्चुअल इवेपोट्रांसपायरेशन? सो एक्चुअल इवेपोट्रांसपायरेशन इज द जितना अमाउंट है उसके अकॉर्डिंगली प्लांट है जो क्या करता है? इवेपोट्रांसपायरेशन के लिए वाटर यूज करता है, कंजप्टिव यूज करता है. दैट इज अगर वाटर अवेलेबल कम है, देन हमारा जो कंजप्टिव यूज होगा वो कम होगा. अगर वाटर अवेलेबल बहुत ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? एक्चुअल इवेपोट्रांसपायरेशन भी बहुत ज्यादा होगा, मतलब सफिशिएंट अमाउंट में होगा. तो यहाँ पे कंडीशन दिया है कि सरफेस ऑफ ट्रांसपायरेशन इज सबमर्ज, मतलब जो हमारा रूट जोन है वो सबमर्ज है, मतलब पानी का कोई कमी नहीं है. देन पोटेंशियल इवेपोट्रांसपायरेशन इज, तो पोटेंशियल इवेपोट्रांसपायरेशन क्या हो जाएगा? एक्चुअल से कहीं ज्यादा होगा, है ना, मच मोर देन एक्चुअल. अगर कंफ्यूजन है तो सीधा डिफिनेशन, डिफरेंस बिटवीन AET एंड PET. डाउट है कोई? कुछ पूछना है? डिफरेंस बिटवीन AET एंड PET. मैम जो कैपेसिटी है, कुछ भी चीज कैपेसिटी इतना ही ना ये करेगा. इवो ट्रांसपोरेशन करा तो जितना प्लांट का कैपेसिटी होगा उतना ही ना वो इवो ट्रांसपोरेशन करेगा मैम. ओके, मुझे ये बताओ कि PET एंड AET में डिफरेंस क्या है? What is difference between potential evapotranspiration and actual evapotranspiration?
हम एक्चुअल जितना हम लोग करते हैं पोटेंशियल मतलब कुछ एक्स्ट्रा भी होता है उसमें, मतलब एक्चुअल में भी कुछ एक्स्ट्रा होगा, बट यहाँ पे मैम ट्रांसपरेशन पूछा तो सिंपली एक्चुअल इन केस ऑफ एईटी, एईटी में क्या होता है, अगर हमारा वाटर का अवेलेबिलिटी बहुत कम है तो जो हमारा एक्चुअल ट्रांसपायरेशन होगा दैट विल बी ऑल्सो लेस एज कंपेयर टू नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, अगर हमारा वाटर का अवेलेबिलिटी, हमने वाटर प्रोवाइड किया है, सफिशिएंट मैनर में प्रोवाइड किया है, देन हमारा एईटी होगा दैट विल बी सफिशिएंट। और एईटी पीईटी इक्वल कब होता है, व्हेन एईटी इक्वल टू पीईटी। अगर जितना मेरा मतलब जितना अमाउंट पे मेरा वाटर इवोपोरेट हो रहा है उतना ही मेरा पोटेंशियल भी है, तब इक्वल होगा मैम। ऐसा होता है क्या? हमने जितना अमाउंट में जो हमारा कंजप्टिव यूज होना चाहिए, अगर उस अमाउंट में वाटर अवेलेबल है रूट जोन में, देन एईटी इक्वल टू पीईटी। एईटी होने में कोई कंजूसी नहीं होगा। एईटी ऐसा टर्म है जो कि जो हमारा मिनिमम अमाउंट है, मतलब जो सफिशिएंट अमाउंट है उसके अकॉर्डिंगली प्लांट है जो अपने आप को चेंज कर लेता है, उतना ही अमाउंट में इवेपोट्रांसपायरेशन करता है, दैट इज एईटी। बट इन क्वेश्चन गिवन वाटर हमारा क्या है, हाईली अवेलेबल है, मतलब कंजप्टिव यूज से कहीं ज्यादा है। सो उस कंडीशन में जो हमारा एक्चुअल जो हमारा पीईटी होगा वो क्या होगा, पीईटी इज मैक्सिमम देन एईटी। इस क्वेश्चन में थोड़ा मतलब कोई वैसा लॉजिक नहीं है इस क्वेश्चन में, क्योंकि कुछ कुछ वर्ड जो टर्म यूज किए गए हैं वो सही नहीं है। जैसे यहाँ पे मच मोर देन एईटी, यहाँ पे क्या होना चाहिए, मच मोर देन एईटी। द पोटेंशियल इवेपोट्रांसपायरेशन इज मच मोर देन एईटी, ये यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, सो मे बी इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। अगर हमारा वाटर मैक्सिमम अवेलेबल है देन पीईटी वैल्यू इज मोर देन एईटी। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिमिलर है जो हमने इसके पहले किया था, दैट इज फॉर कैलकुलेशन ऑफ एस्टिमेशन ऑफ रेन गेज। क्वेश्चन नंबर 33, द यूनिट ऑफ रन ऑफ इन एमके सिस्टम। क्या होता है यूनिट, यूनिट ऑफ रन ऑफ? मैम क्यूबिक मीटर पर सेकंड होगा मैम। क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 34, runoff increases with increase in intensity of rain, increase in infiltration capacity, increase in permeability of soil, all of the above. Which one is correct? Increase in the intensity of. मैम ऑप्शन ए, इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ रेन। इंटेंसिटी ऑफ रेन के साथ क्या हो जाएगा हमारा, रन ऑफ इंक्रीज करेगा। एंड व्हाई नॉट इंक्रीज इन इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, ये दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट क्यों है? इनफिल्ट्रेट हो जाएगा तो रन ऑफ कहाँ से होगा, मतलब यदि पानी अंदर ही चला फिल्ट्रेट जाएगा हो तो रन जाएगा, ऑफ दैट मीन वाटर है जो क्या हो गया, मूवमेंट थ्रू वो सॉइल हो गया, है ना, ग्राउंड वाटर में यस मिक्स हो गया, तो दैट मीन्स इनफिल्ट्रेशन हमारा लेस हो गया। और ऑल्सो अगर परमेबिलिटी ऑफ सॉइल अगर ज्यादा है, इन केस ऑल्सो इनफिल्ट्रेशन हाई, देन रन ऑफ डिक्रीजेज। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 इज रिलेटेड टू आइसोहाइडल, कैलकुलेट एवरेज रेनफॉल। ओके, ये स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, करेंट मीटर इज यूज्ड टू मेजर द, क्या मेजर करता है करेंट मीटर? वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। ओके, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, if it rained between 2 p.m. and 3 p.m. and the entire basin area just start contributing water at 3 p.m. to the outlet, then time of concentration will be, क्या होगा टाइम ऑफ कंसंट्रेशन?
क्या होता है टाइम ऑफ कंसंट्रेशन? व्हाट डू यू मीन बाय टीसी, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन? हाइड्रोलॉजी तो पढ़े हो ना? हाइड्रोलॉजी की क्लास तुम लोग की कब हुई थी? संतोष सर ने लिया था क्या? यस मैम। हाइड्रोलॉजी हाइड्रोलॉजी की क्लास तुम लोग की हुई है यस ना? मैम। ओके, सो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन से क्या समझते हो? दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। क्या होता है? टाइम ऑफ कंसंट्रेशन फॉर अ बेसिन। पता है या नहीं? टाइम ऑफ याद कंसंट्रेशन। नहीं आ रहा याद नहीं आ रहा है। सोचो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये।